classes of MLP School Rajpura. As you know, our school is conducting online classes for competitive exam. So student, I Priyanka ma'am continue our online classes. Today I tell you some basic devices of computer. You know very well computer is an electronic device that perform many functions with help of many devices like input device, output device and processing device. So let's start our topic. Student, first I tell you what is the principle of computer. You know, first we give input, then computer CPU part processing that and we get आउटपुट और स्टोरेज मीन्स या तो हम उसको आउटपुट में लेते हैं या फिर उसको किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, फॉर गिविंग इनपुट वी यूज मैनी डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग के लिए वी यूज सीपीयू एंड आउटपुट के लिए भी वी यूज मैनी डिवाइसेस एंड स्टोरेज के लिए भी वेरियस डिवाइसेस आर यूज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट to introduce the various devices. There are the name of the devices: input device, processing device, storage device, output device and users. Users that use computers are called users. Okay, so student, in that video I will tell you what are input devices and processing devices. Input device are those devices that are used to get input in computer. Okay, examples: keyboards, barcode reader, MICR, mouse, etc. So now I tell you some devices. First I tell you keyboard. The keyboard look like a typewriter. It has many switches or many keys. Okay, type of keys. First one is alphabet. The keys A to Z or caps में A to Z are the alphabets key. Numbers, numeric keys 0 to 9 and special key are Windows key, Control, Alt, Delete, numlock. These special keys are used to perform various special function. Okay. Next one is function key. Function key are F1 to F12 and each function key has its own function. Okay. Next one is mouse. A mouse is a pointing device and input device both. It has 3 buttons, one in between that is a scroll button and left and right button. Okay. Using scroll button we can move the cursor on the screen anywhere. Okay. Next input device is joystick. Joystick is used to playing games. Next one is scanner. That is also an input device that take inputs as a document and scan that and provide to user. And that one is credit card reader. That is use credit card input as input and we can money transfer from anywhere. Next one is memory card reader. Okay. Next input device is barcode reader. That is used to scan or read the barcode that are like that. That is the barcode. Next one is MICR, magnetic ink character recognition. That machine is used in banks to read the checks. And next one is optical character recognition and optical mark recognition. OCR and OMR. OMR is used to read the mark. Sometimes you give exams in OMR system. In that you fill circle in blue or black pen. That machine read all OMR sheets and that is OCR, optical character reader. और ये in OMR sheet we read marks and in that we read characters. Okay. These both are also an input devices. Voice recognition system, webcam and microphone. These are also input device to perform function. So student, in this video I tell you about input devices. I hope you understand easily
what are various input device and use of that devices. So student, learn all these input device and its functioning and write in your notebook. Student, if you see the video properly, you can do that assignment. Define input device, explain the functioning and uses of various input device like keyboard, mouse, VCR, MICR, OMR. Okay. Thank you. Have a nice day. Good morning to all of you. I am Anshu Yadav, your maths teacher in MLP School Rajpura. Welcome you all to our YouTube channel of online classes. So today's our topic is water images. Previously we did mirror images. Mirror image will show us the left to right images, but in water images we show that top to bottom images, that is that will change top to bottom and bottom to top. So students, let's start the topic. Water image. Water image is a reflection of an object into the water. Is it water image, or we can say that the water image of the figure look like the mirror image of the figure if we place the mirror at the horizontal. Firstly, कल हमने क्या पढ़ा था कि water image show us the left right positions. Yeah, if we place a mirror at this place, so it will show left image to like right image or right to the left image. But water images top to bottom figures images दिखाता है. Yeah, we can say that if we place a mirror at the horizontal place, so we can say that it will show us top image as the bottom image and bottom image as the top image. So let's start. First question is, choose the water image of the combination. So water image, that means mirror is at the place. Yeah, this, yeah, we can say that here we can टॉप की हमें क्या देखनी है, यहाँ पे बॉटम इमेज देखनी है. सो टॉप सिंपली क्या करेंगे हम इसको, टॉप यहाँ पे ये है तो बॉटम यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा बॉटम में आ जाएगा और ये टॉप में. सो डी विल बी लुक लाइक एज इट इज डी. सो अब यहाँ देखो सिर्फ एक डिफरेंस होता है. मिरर में हम क्या करते हैं, यहाँ से इमेज देखने स्टार्ट करते हैं और यहाँ से अगर हम इसको टर्न करेंगे तो क्या होगा, यूं उठ के जाएगा तो मतलब सी पहले आ जाएगा वहां पे. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से नीचे, तो ये प्लेसेस कहाँ रहेंगे, सेम ही रहेंगे. तो कहाँ से स्टार्ट होगा, डी से. सो इट विल स्टार्ट विद डी एंड डी विल लुक लाइक एज इट इज डी. आई इज अ symmetric image, yeah, symmetric word, like as in the mirror image. S will look like, this will comes to upside and here this curve will be downside. So what will be it, so that will be look like this. Okay, now next is C अगर हम वो करेंगे तो भी क्या होगा, एज इट इज इमेज. सो D एज इट इज दिस एंड S विल बी चेंज और C एज इट इज. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, अदरवाइज और बाकी कोई ऑप्शंस करेक्ट नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज दिस. सो फर्स्टली वाटर इमेज में स्टार्ट होगा यहाँ से. सो N विल बी क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल कम्स टू अपसाइड एंड दैट end point will comes to downside. So here this will option is neglected and both of three all those three options are already are still exist. Now H, now H यहाँ पे कहाँ चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया, अब ये तो होगा नहीं, मिरर इमेज में होता है ना कि लेफ्ट और राइट हो जाता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एज इट इज रहेगा, सिर्फ टर्न करना है. तो ये दोनों ऑप्शंस होंगे, तो ये नेग्लेक्ट हो गया. अब नाउ आर विल बी, यहाँ पे क्या हो गया है, इसको मिरर इमेज के जैसे रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब लेफ्ट वाला राइट में, राइट लेफ्ट में. और लेकिन यहाँ मिरर इमेज में क्या होता है, सेम रहती है पोजीशंस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज वाटर मिरर इमेज, वाटर इमेज ऑफ फ्रॉग, यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट इज दिस, मिरर इमेज बतानी है. फर्स्टली यहाँ पे भी सेम होगा, एरोज जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं, सेम लाइक एज वी डिड इन द मिरर इमेज. सो एरोज क्या हो जाएंगे अब हमारे पास चेंज, ये
दिस एरो विल कम्स टू एट दिस प्लेस एंड दिस विल, मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे, बिकॉज वी नो दैट अगर इफ वी प्लेस these two squares in a rectangle or a square, these two are represent the diagonals, and we know that diagonals are already in a closed figure are 2. Okay, so they will exchange their position simply. So firstly these three arrows के साथ हमारे पास end में क्या है, this arrow, so this option is neglected. Now next is, ये तो हमारे पास arrows तो correct है, चेंज भी हो गए दोनों। अब हम देखते हैं कि अगर ये एंगल्स भी, यहाँ पे क्या था 90 यहाँ पे था, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो गया, और ये एंगल जो है ये नीचे आ जाएगा, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे क्या हो गया, एंगल को चेंज नहीं करा, इसीलिए ये क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट इज दिस। नाउ सिंपली अगर हमारे पास क्या हो, इन सेंटर में इमेज हो तो क्या हो जाएगा, वो सेंटर में ही रहती है, डायगनली होती है तो चेंज होती है, सेंटर वाली हमेशा क्या रहेगी, मिडल वाली मिडल में ही रह जाती है। ठीक है, सो ये तो सेम है। अब हमें क्या करना है, टॉप वाली का बॉटम वाली टॉप में चल जाएगी एंड टॉप वाली बॉटम में आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सारे करेक्ट है, लेकिन इसमें क्या है, अब हमारे पास एक गिवन है यहाँ पे शेडेड पार्ट दिस। अब जब हम इसको टर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल कम्स टू अपसाइड एंड दिस कम्स टू डाउन। ओके, सो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ये डाउन साइड आ जाएगा तो कौन सी इमेज आ जाएगी हमारे पास, ए। नाउ नेक्स्ट इज वाटर इमेज ऑफ दिस। नाउ सिंपली जो लाइन होगी वो तो लाइन एज इट इज रहेगी, बिकॉज इफ वी टर्न टू दिस, अगर हम इसको पलट भी देते हैं तो भी लाइन यहीं पे रहेगी। ये दोनों हमारे पास सेम है और सेंटर वाली लाइन भी सेम है, ये सब क्या रहेगा, सेम। तो दिस ऑप्शन इज ओके। सो सब में सेम है हमारे पास। अब देखते हैं हमारे पास ये अप साइड और डाउन साइड होना चाहिए। अब जो सर्कल होता है उसमें तो हमारे पास कोई देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो सीधा तो जहां डाउन साइड है सर्कल वहां उन तीनों ऑप्शंस को देखो, बाकी नेग्लेक्ट हो गए। ठीक है, अब ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये भी टिल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सेम है तो ये ऑप्शन भी नेग्लेक्ट हो गया। टिल्ट हो जाती है तो ये ऑप्शन करेक्ट है, और ये भी क्या हो गया अब हमारे पास, इनकरेक्ट ऑप्शन। So that is all for today. Thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम, आपकी हिंदी अध्यापिका। तो हमारे दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से होनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जो नकारात्मकता है या जो निराशा है वो दूर हो सके और एक नई आशा के साथ में हम अपने दिन की शुरुआत कर सके। तो हमारा आज का सुविचार है कि हमें जो लोग अच्छे हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जो लोग अच्छे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और जो अच्छे नहीं हैं उनके साथ भी आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको अच्छाई प्राप्त होती है। और जो ईमानदार हैं, जो ईमानदार व्यक्ति हैं उनके साथ में ईमानदार रहें, और जो ईमानदार नहीं है उनके साथ भी हमें ईमानदार रहना है। इससे क्या होगा, आपको ईमानदारी प्राप्त होती है। तो हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे हमारे साथ में कोई अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करे, इससे आपको अच्छाई प्राप्त होगी। और आपको हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, चाहे कोई आपके साथ ईमानदारी करे या बेईमानी, इससे आपको ईमानदारी प्राप्त होगी। आगे लिखते हैं हमारा आज का सुलेख, और उसके बाद में करेंगे हमारा व्याकरण का टॉपिक, लोकोक्तियां। तो जो हमारा कल का सुलेख था, बढ़ती जनसंख्या, उसी को आगे लिखते हैं कि अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है। आपको भी उसी के आगे से लिखना है बेटा। लिखेंगे, स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता, स्कूलों में दाखिला यानी एडमिशन, दाखिला नहीं मिलता। बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या भी
इसी की देन है, इसी की देन, देन है। जब तक इस बढ़ती जनसंख्या पर इस बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, तब तक भारत की प्रगति प्रगति नहीं हो पाएगी। इस बढ़ती जनसंख्या के सामने उसी के आगे के सामने सभी संसाधन संसाधन कम होते जाते हैं। हमें समय रहते इसके लिए उपाय करने होंगे। समय रहते इसके लिए उपाय करने होंगे। थैंक यू। बेटा हम कर रहे हैं हमारी लोकोक्तियाँ। कल 5 लोकोक्तियाँ हमने की थी। लोकोक्ति क्या है? लोक में प्रचलित लोकोक्तियाँ यानी लोगों द्वारा कही गई बातें, कहावतें जो होती हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं और उनकी पूरे वाक्य की तरह प्रयोग की जाती हैं। छठी है हमारी, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार यानी चीज़ कम और चाहने वाले अधिक, कि एक अनार और 100 बीमार। तो इसका अर्थ होता है कि एक चीज़ और उसको चाहने वाले अधिक, यानी चीज़ कम है और उसको चाहने वाले अधिक है। वाक्य में प्रयोग है, गांव भर में डॉक्टर तो एक है और मरीज सैकड़ों। गांव भर में डॉक्टर तो एक है और मरीज सैकड़ों। बेचारे क्या करें? एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति में है कि बेचारे क्या करें? एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति में है। अगला है हमारा 7वां, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी दोषी व्यक्ति निर्दोष को डांटते हैं, कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि जो दोषी व्यक्ति है वो ही निर्दोष व्यक्ति को डांटने लगे। उदाहरण है इसका, यानी वाक्य में प्रयोग, एक तो मेरा रुपया लौटाते नहीं, ऊपर से पुलिस की धमकी देते हो। एक तो मेरा रुपया लौटाते नहीं, ऊपर से पुलिस की धमकी देते हो। भाई खूब, उल्टा चोर तो कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
अगली है हमारी 8वीं, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान यानी दिखावा अधिक और वास्तविकता कम। यानी दिखाने में तो बहुत कुछ, लेकिन वास्तविकता में देखे तो कुछ भी नहीं। तो ऊंची दुकान यानी दिखावा अधिक, फीका पकवान यानी वास्तविकता कम। इस दुकान के वाक्य में प्रयोग है इसका, इस दुकान के माल की सब बड़ी तारीफ सुनी थी। इस दुकान के माल की बड़ी तारीफ सुनी थी, यही दुकान का बड़ा नाम सुना था, पर खाया तो बेकार। सच है ऊंची दुकान फीका पकवान की, सच है ऊंची दुकान फीका पकवान। नवा है आपका कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला यानी कष्ट के समय में और कष्ट आ जाना। कष्ट के समय में दूसरा कष्ट आ जाना, या कष्ट के समय में और कष्ट आ जाना। एक तो मैं पहले से ही बेरोजगारी से परेशान था, ऊपर से चोरी हो गई। कि एक तो मैं पहले ही बेरोजगारी से परेशान था, ऊपर से घर में चोरी हो गई। भाई यह तो कंगाली में आटा गीला हो गया। कि यह तो क्या हो गया, कंगाली में आटा गीला हो गया। कि पहले से कष्ट में रहना और दूसरा कष्ट भी आ जाना, कि पहले ही बेरोजगार थे और उसके ऊपर से चोरी और हो गई। तो ये तो वही बात हो गई, कंगाली में आटा गीला। 10वां इसका, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया यानी अधिक मेहनत का कम फल मिलना। कि पहाड़ खोदा और निकला क्या उसमें से चूहा। तो अधिक मेहनत की लेकिन फल कैसा मिला आपको, कम मिलना। अधिक मेहनत करना और फल कम मिलना। मैंने सारे दिन खेतों में कठिन काम किया। वाक्य में प्रयोग है, मैंने सारे दिन खेतों में कठिन काम किया, शाम को मिले केवल 100 रुपये। तो क्या हो गया ये, खोदा पहाड़ों निकली चूहिया। कि मैंने सारा दिन खेतों में कठिन काम किया और केवल मिले 100 रुपये, तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो एक बार बेटा फिर से देख लो सिर्फ मुहावरे और उनके अर्थ। एक अनार 100 बीमार यानी चीज़ कम और चाहने वाले अधिक। एक अनार 100 बीमार, चीज़ कम चाहने वाले अधिक। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति निर्दोष को डांटने लगे। दोषी व्यक्ति निर्दोष को डांटने लगे। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। दिखावा अधिक वास्तविकता कम। कंगाली में आटा गीला, कष्ट में और दूसरा कष्ट आ जाना। कष्ट में और दूसरा कष्ट आ जाना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक मेहनत और उसका कम फल मिलना। मेहनत अधिक करना और उसका फल कैसा मिलना, कम मिलना। तो बेटा आपको ये 6-5 आज के जो लोकोक्तियाँ हैं वो नोटबुक में नोट करनी है, लर्न करनी है अच्छे से। थैंक यू। Hello student, a very nice morning to you all. I'm Vinita ma'am, your teacher teaching in MLP School Rajpura. Welcome you to our YouTube channel of online classes. Student, you know that this video is for your cursive writing, and in our today's cursive writing, firstly we will write a thought. And for today's our thought is, you don't have to see the whole staircase, just take the first step. Student, I repeat it again, you don't need to see the whole staircase, just take the first step. स्टूडेंट, अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता है कि आपको बिना फल की चिंता किए हुए कर्म करते रहना चाहिए। स्टूडेंट, you don't have to wait for your result, you don't have to worry about your result, just do the work with honestly. मीन्स आपको बिना किसी भी चीज़ की चिंता किए हुए कि हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा, हमें क्या मार्क्स मिलेंगे, जस्ट यू हैव टू स्टडी बाय फोकसिंग total concentration, or you can say that with your full concentration toward the study. If you are doing it properly or regularly, it definitely you can crack any type of competitive exams, you can crack any kind of, or you can do your best in your studies. So student, let's start our today's cursive writing. Student, so let's start our work from today's cursive writing. In today's cursive writing we will write all the living things, all the living things need food, to sustain
to sustain life. We can't live without food. We cannot live without food. Beyond a certain period. Put a full stop, student. From next line we will start from capital letter. Food is essential as. Food is essential as. It provides us energy for performing various activities. Student, while writing, it is very good thing for us that while writing we can improve our reading also. So whenever you write anything, always read it. Next line is it provides us nutrients needed for growth of the body. From next line, well, it repairs the worn out cells and tissues. Next line, it prevents the body from various diseases. Okay, student, we have completed our cursive writing. You have to do it in your fair notebook. Have a good day. Goodbye. Good morning, students. I, Neetu Yadav, teaching science in MLP School Rajpura. Welcome all students in our YouTube channel of online classes. As students, as you know, we start a new pattern of study in science. We can study by preparing a model or doing activity. So students, in today's video, which is for class 6 to class 9, we do an activity or practical in which we can use sedimentation and decantation method. In this activity, we can separate insoluble materials from liquid. So students, first we have to know what is sedimentation and what is decantation. Sedimentation is the process in which heavier particles of insoluble solid can settle down in liquid. सेडिमेंटेशन में आपका कोई भी हैवी पार्टिकल है जो लिक्विड के अंदर इंसोल्यूबल नहीं होता है, उसको हम सेटल डाउन करवाते हैं बेस ऑफ द किसी भी लिक्विड के. एंड डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ क्लीन वाटर विच वी कैन ऑब्टेन आफ्टर सेडिमेंटेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड इन द लिक्विड. और डिकेंटेशन क्या होगा, सेडिमेंटेशन के बाद जब क्लीन वाटर आपका सोल्यूबल सॉलिड सेटल डाउन हो जाएगा, क्लीन वाटर को हम दूसरे बीकर में रिमूव करेंगे. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी. सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो वी स्टार्ट a practical
in which we have to study about sedimentation and decantation. Sedimentation and decantation is a process of filtration in which insoluble solid can be filtered through or can be separate from liquids or any water. So students, in this study we have to know what is sedimentation and decantation. So students, let's start our activity. Materials required for these activities are 2 transparent glass, water and some sand. Only these materials you have to require, what are glass, sand and water. So method of this activity or practical is that take a mixture of sand and water in a beaker or glass. बीकर क्या है, अब आपको होम पे तो इजीली बीकर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट ग्लास है जो आपको मिल सकता है घर पे, लेकिन अगर आप स्कूल में हैं तो आप बीकर का इस्तेमाल करेंगे. टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इन अ बीकर. आप पानी और सैंड का मिक्सचर है, आप उसको एक बीकर में ग्लास के अंदर डालेंगे. अलाउ मिक्सचर टू स्टैंड फॉर सम टाइम अनडिस्ट्रीब्यूटेड. अब क्या है, जो मिक्सचर आपने बनाया है उसको कुछ टाइम के लिए बिना छेड़े उसी तरह रख देंगे, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है उस मिक्सचर के साथ. आफ्टर सम टाइम यू कैन सी सम पार्टिकल्स स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ बीकर और ग्लास फॉर्मिंग सेडिमेंट. अब क्या कह रहे हैं, कुछ टाइम के बाद जो मिट्टी के पार्टिकल्स है वो नीचे ग्लास में सेटल डाउन होने लग जाएंगे, जिससे आप ये कह सकते हैं कि वो जो आपके सैंड पार्टिकल है वो क्या है, सेटल डाउन हो गए, उन्हें हम क्या करें, सेडिमेंट बनाना स्टार्ट कर दिए. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन. नेक्स्ट इज केयरफुली पोर लेयर ऑफ क्लीन वाटर इनटू अनदर बीकर और ग्लास. डू नॉट डिस्टर्ब द सैंड एट द बॉटम. अब क्या कह रहे हैं, जो आपकी सोल अच्छे से सेडिमेंट नीचे बैठ जाती है ग्लास में, तो क्या करें, केयरफुली उस ऊपर का जो लेयर है पानी की जो आई है उसको हम दूसरे ग्लास के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे. हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो सैंड है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिकेंटेशन. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी. फर्स्ट आई हैव टू टेक अ ग्लास एंड add some soil in it. Now add water on glass. So students, this makes a mixture of sand and water. In method we see that take a mixture of sand and water in a beaker. अब इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे. इसको क्या करेंगे, अनडिस्टर्ब, बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं. कुछ टाइम के लिए आप देखना स्टार्ट करेंगे, जो सोइल है वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी. यू कैन सी दैट आफ्टर सम टाइम the soil can settle down at the bottom of the glass. जो सोइल है वो ग्लास के बॉटम पे सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देगी और ऊपर आपको वाटर दिखाई देगा जो अभी प्योरली क्लीन नहीं है, लेकिन सम टाइम बाद ये वाटर है वो क्लीन हो जाएगा और कम्प्लीटली जो सोइल आपके नीचे सेटल डाउन हो जाएगी. आफ्टर फ्यू मोर मिनट्स यू कैन सी दैट वाटर इज somehow clean, and you can also clearly see sand which is settled down at the bottom of the glass. So students, let's start our clean water into another beaker. Slowly you have to take glass without distribute the soil and pass the water into another beaker. So student, I pass all the water into the next beaker. So in this process you have to observe that the clean water is transferred to the second beaker.
सेकेंड बीकर लीविंग बिहाइंड द सैंड इन द फर्स्ट बीकर। अब ये जो फर्स्ट बीकर है उसमें क्या है, आपकी सिर्फ मिट्टी रह गई है और आपके दूसरे बीकर में मैंने क्लीन वाटर को ट्रांसफ़र कर लिया गया है। सो कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी इज दैट द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन इज यूज टू सेपरेट एन इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम इन लिक्विड। So students, we can also say that sedimentation is a mixture of sand and water is allowed to stand undistributed for some time. When sand is settled down at the base of the glass or bottom of the glass, this upper clear liquid remains about sediment is called supernatant। जो ऊपर बीकर के ऊपर जो वाटर आता है उसे हम क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट्स कहते हैं, ठीक है। And decantation is the removal of clear layer of liquid without disturbing the settled solid। जो आपका सोयल है क्या, सॉलिड है क्योंकि वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा है तो वो इनसोल्यूबल सॉलिड है। और जो क्लियर वाटर को जिसको हम नेक्स्ट ग्लास में या बीकर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, डिकंटेशन कह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडेज एक्टिविटी। A very nice morning to you all. This is Vinita ma'am in front of you, welcoming you to all our YouTube channel of online classes from MLP School Rajpura. Students, in today's video we will do few questions that are relevant to our competitive exams like NDA, NSC, NEST, Sainik School, Army School. As you know very well that from few days we are going to continuing our these classes. So student, let's start our today's class for science subject. Let's have a look on the few questions. Students, so let's start our today's preparation for competitive exams for the subject science. We are doing the MCQs based questions. Student, our first question is, ornithology is the study of birds, option B animal, option C insect, option D human beings. Student, ornithology is related to the word bird, so it is called the birds study. Okay student, and next question is, ichthyology is the study of option A bacteria, option B birds, option C fishes, option D dinosaur. Student, ichthyology is the term related with the fishes. Okay student, the study of fishes is known as ichthyology. So our right answer is answer C, that is fishes. Our next question is question number 3. Osteology is the study of ear, bones, muscles, stomach. Student, our right answer is bones. In osteology, every person who wants to become an osteologer studies about the bones, content of the bones, how it is manufactured, what it include, and many more things. Okay, next question is, the botanical name for brinjal is. Student, what is the botanical name? Botanical name, I think you student, botanical name, it's टी। ऑनियन का बोटेनिकल, सॉरी आई वॉज ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. बोटेनिकल नेम फॉर ब्रिंजल इज ऑर्जिया सटाइवा, बी एलिविया सैपर, सी सोलेनम मेलंजिनल, एंड डी none of these. Student, our right answer is solenal melanginal. Okay student, it is the botanical name of brinjal. Our next question is, the botanical name for onion is. Student, the botanical name of onion, A option is Gossypium hirsutum, the B is Allium cepa, C is Apricot, D is Orzia sativa. Student, I have told in our previous video that Gossypium hirsutum is the botanical name of cotton and Orzia sativa is the botanical name of rice. Our right answer is Allium cepa. Okay student, our next question is, the study of botanical
the study of sound. I misread it. It is the study of sound is called neurologistic, hypocrisy, logistic, acoustics. Student, the right answer is acoustics. The study of sound is known as acoustics, and who study it become an acouster. Student, neurologist, neuro word is related to your brain, न्यूरो नर्व्स, ये जो है वो स्टडीज़ ब्रेन के अंदर आती है, मीन्स उससे रिलेटेड टर्म्स हैं. एंड हिप्टोक्रेसी एंड लॉजिस्टिक आर द बोथ डिफरेंट टर्म्स that are not related to your this subject. You can say that. The question number 7 is the study of heavenly bodies. You know, student, heavenly bodies that are planets, sun, all these comes into the heavenly bodies that are made themselves. Okay, student. The first option is astronomy, B is astrologer, C histogrammy, and D is universe. And your right answer is, student, astronomy. If a person wants to become an astronomer, he has to study about the heavenly bodies. He have much idea, have much knowledge related to the heavenly bodies. Our next question is question number 8. The study of tissues is called. First option, bibliography, cinematography, histology, none of these. Student, your right answer is histology. It is the term related to your tissues. If a person studies about the tissues, his study is known as histology, and he become histologer. Student, next question is electric lamp was invented by. Who invented the electric lamp? Michael, James Watt, John Stevenson, Thomas Alva Edison. And your right answer is Thomas Alva Edison is the person who invented the electric lamp. Next question is the fear of crowd is called. Student, most of us are having this kind of disease. We can't say that it is a disease, but it's a thing that is present in someone's or many type of persons, many persons in our society. The answer would be, firstly we will come to the option ochlophobia, clingophobia, gymnophobia, all of these. Student, the phobia is the term that comes in the fear, और आप कह सकते हैं कि phobia word जो है वो उन terms के पीछे आता है जिसका मतलब होता है डर से related हो. जिसमें the fear of crowd, भीड़ का डर जो होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? ऑक्लोफोबिया. ओके, सो आई एंड अप माई क्लास. आई थिंक यू विल do all these questions and remind yourself. Have a good day. Goodbye, student. Good morning, students. I am your SST teacher and I teach you GK for your competitive exams because this is phase of competition. Our MLP school starts some special classes for exam like NVS Navodaya Vidyalaya, KVS Kendriya Vidyalaya, Sainik School, Military School, NDA and other exams. So grab the opportunity and prepare yourself for these exams. Now we start our today's class. This class is for 6 to 9. In previous class, I told you that there are many organizations in the world. We learn about UNO, United Nations Organization in the previous class. And our today's topic is WTO, World Trade Organization. World Trade Organization is an organization which helps the nations to trade with each other in a peaceful way. So, let we start our today's class. Every organization has a specific logo, and this is the logo of World Trade Organization. This is the building of WTO. It is situated in Geneva, Switzerland. Here is the headquarters of WTO, and all the staff members work from here. After that, we read about the introduction of WTO. WTO is an international organization established to supervise and liberalize world trade.
WTO एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना विभिन्न देशों के बीच में होने वाले व्यापार की देखरेख और उसकी स्वतंत्रता के लिए की गई थी. Now we read about the history of WTO. The WTO is the successor of GATT, General Agreement on Tariffs and Trades, which was created in 1947. WTO का निर्माण किससे हुआ है? GATT से हुआ है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड से हुआ है, और GATT की स्थापना 1947 में हुई थी. Now we read about the definition of WTO. The WTO is an intergovernmental organization that is concerned with the regulation of international trade between nations. कि WTO एक ऐसी अंतर सरकारी संस्था है जो विभिन्न देशों के अंदर जो व्यापार होता है उसके नियम का ध्यान रखती है. Now we read about the establishment of WTO. Establishment of WTO is on 1 January 1995 under the Marcus Agreement. Motive of WTO is formed for economic stability, peace and for reconstruction. कि WTO का निर्माण आर्थिक स्थिरता, शांति और पुनर्निर्माण के लिए किया गया था. हेडक्वार्टर ऑफ WTO in Geneva, Switzerland. Membership 164 countries. Official languages Spanish, English, French. Director General Robert Azevedo. Staff 640. Objectives, functions of WTO. Administering WTO trade agreement, handling trade disputes, providing forum for trade negotiation, monitoring member trade policies, cooperating with other international organizations, providing technical assistance and training to developing and least developed economics. Means ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं देशों के बीच में उनकी देखरेख करता है, जो भी देशों के बीच में डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करता है, जो ट्रेड के नियम्स होते हैं उनको बनाता है, जो इसकी पॉलिसीज़ होती हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है, उनका निरीक्षण परीक्षण करता है. जो एक देश WTO के अंदर शामिल हैं उनको, जो पिछड़े हुए हैं या जो थोड़े डेवलप्ड हैं उनको नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाता है, और जो विश्व के अंदर अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सहयोगी संगठन हैं, उनके साथ अपने संबंध कायम करता है. नाउ वी डू सम क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन WTO. GATT was established in which year? 1947. अगर यहाँ पे 1948 आता है, this is also a correct answer. If you have option 1947, 1947 is the correct option. Name the ambassador India appoints in WTO. Brajendra Navneet. Is India a member of WTO? Yes, India is a member of WTO. Next question. Since when has India been a member of the WTO? Answer. India has been a WTO member since 1 January 1995 and a member of GATT since 8 July 1948. कि जो WTO है उसका मेंबर तो वो जब WTO बना तभी से है, और GATT का मेंबर ये 8 जुलाई 1948 से है. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ WTO? रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स ऑफ ट्रेड. कि जो कर वगैरह होते हैं और जो ट्रेड के बीच में जितने भी संकट आते हैं, जितनी भी बाधाएं आती हैं, उनको दूर करना, उनको कम करना, रिड्यूस करना, कम करना ही WTO का पर्पस है. I hope students you understand this topic WTO very well. Write down these question answer in your GK notebook and learn them also. Thank you. Good morning student, welcome to online classes. This is Sarus from MLP International School Rajpura. So student, now as we are all are just starting our studies
through online classes. So in this regard, we are just trying to do separate from the daily routine. That is, now we are having already started to do the practice for the students for entrance exams. In this regard, now we are going to just start, and this in the video, end of the video, I've just given some exercise also. So let us start. So let us start the topic फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. हमने जो है प्रेजेंट और पास्ट ये कंप्लीट कर लिया है. अब नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सो इन दिस सेंटेंस जो मेन वर्ब है उसके साथ जो है अपने सेंटेंस में जो है गा, गे, गी ये यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल राम जाएगा, जाएंगे, तो इस तरह से जो है ये वर्ड्स आते हैं. अब इसका फर्स्ट सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं. तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि इन सेंटेंसेस में इन दिस सेंटेंसेस नॉट इज नॉट यूज्ड एंड नो क्वेश्चन इज आस्क्ड, यानी कि किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता और नहीं जो है वाक्य में इस्तेमाल नहीं होता है. इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट के साथ आपको विल, ये हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट, ये यूज़ होता है. अब इसमें एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल राम विल गो टू स्कूल, राम स्कूल जाएगा. यहाँ पे सब्जेक्ट राम है और उसके साथ हमने विल जो है यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है और फिर ऑब्जेक्ट है टू स्कूल. ये प्रपोजिशन है तो उसके साथ हम जो है इसमें यूज़ हुआ है. अब सेकंड का देखिए, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा. सेम थिंग, सब्जेक्ट के साथ विल प्लस हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की और ऑब्जेक्ट. थर्ड देखिए, वी ऑल विल सिट टुगेदर, हम सब साथ बैठेंगे. तो इस तरह के जो है इसमें यूज़ होते हैं. Yes, now the second part of this is negative sentence. and negative as नकारात्मक वाक्य. जैसा कि ये नेगेटिव है तो इसमें जो है नॉट का यूज़ होता है. अब देखिए इसके रूल्स क्या है. सब्जेक्ट के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, विल के साथ नॉट यूज होगा और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस ऑब्जेक्ट है. एग्जाम्पल देखिए, राम विल नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाएगा. सेकेंड देखिए, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा. थर्ड देखिए, वी ऑल विल नॉट सिट टुगेदर, हम सब साथ नहीं बैठेंगे. अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ये हैं प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं. इसमें क्या होता है, मोस्टली द पर्सन्स आस्क द क्वेश्चन, ओके, एज इट इंटेरोगेटिव. सो इसका रूल क्या है, विल के साथ आपको सब्जेक्ट यूज होगा, उसके साथ आप नॉट, अगर है तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज नहीं है तो नॉट जो है मत यूज़ कीजिएगा. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है. अब इसका एग्जाम्पल देखिए, विल आई प्ले, क्या मैं खेलूँगा. तो इसमें क्या है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा. इसमें क्या है, क्या मैं खेलूँगा, तो इसमें क्या है, आप दो तरह के आंसर दे सकते हैं. यस, यस आई विल प्ले और यस आई विल नॉट प्ले, नो आई विल नॉट प्ले. तो इस तरह के जो होते हैं ये आपके सेंटेंसेस हैं. अब इसमें देखिए कि व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूँगा. तो मैं क्या खेलूँगा का इट मीन्स यू हैव टू गिव the reason what will you play, you will play cricket or football whatever. so इसमें जो ऐसे क्वेश्चंस आए तो उसमें आप एग्जांपल्स देखिए. राम कहाँ जाएगा, तो इसमें क्या है आपका जो है ये वेयर यूज हो गया विल के साथ. तो विल के साथ वेयर राम गो. तो ये क्वेश्चन आप देखिए इस एग्जांपल ध्यान से. अमन कब लाएगा, when will अमन bring. हम कैसे बैठेंगे, हाउ विल वी सिट. वो तुम्हें माफ़ कर देगा, ही विल फॉरगिव यू. हम सब साथ खाएंगे, वी ऑल विल ईट टुगेदर. तो इस तरह से जो है ये वर्ड्स यूज होंगे. सो स्टूडेंट, ये आपका जो है क्लियर हो गया है. नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज फॉर द. सो स्टूडेंट, जो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको इसमें एक्सरसाइज के रूप में आपको बता रही हूँ. आई एम जस्ट ट्राइड माई बेस्ट टू जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट द सेम क्वेश्चन पैटर्न, द विच टाइप ऑफ पैटर्न कम्स इन द एंट्रेंस एग्जाम. सो पहला देखिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग. यानी कि जो ये 4 दे रखे हैं ABCD, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग आपकी कौन सी है. तो पहला देखिए एक्सीडेंटली, और B का देखिए
और सी का देखिए और डी देखिए। तो अब इनमें से क्या है, फर्स्ट का देख ली, ये है अमेरिकन तो एसेंट में। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्स में ब्रिटिश की जो है यूज़ होती है। तो हमारा जो ए की बजाय हमें फिर कौन सा हमारा सही है, एक्सीडेंटली द सी पार्ट। अब सेकंड का देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। अब ये जो 4 पार्ट्स दे रखे हैं, इनमें से करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है। अब ए का देखिए, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट और डिपेंड और डिपेंडेंट। तो इसमें जो है हमारा ये ए और सी दोनों ही है, क्योंकि इसमें ए भी करेक्ट है और ई भी करेक्ट है, तो दोनों ही ये हमारा सही है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। आपको ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनको करेक्ट स्पेलिंग जिसकी है वो सेलेक्ट करना है। अब देखिए ये है कॉन्सेंस और ये है, इसमें भी सेम दिया हुआ है। अब इनकी स्पेलिंग देखिए किसकी करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को जो है हमें संबंधित रखना किसी चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ें हैं इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, कॉन्शियस। तो अब फोर्थ देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विच करेक्ट स्पेलिंग। ये भी करेक्ट स्पेलिंग इसमें से कौन सी है, तो है कमिटमेंट। अब इसमें से जो है आपका सी, कमिटमेंट, ये स्पेलिंग आपकी सही है, तो इसका आंसर सी है। अब 5 का देखिए, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, आर्ग्यूमेंट है, बी आर्ग्यूमेंट। अब इनमें से देखिए ए और बी, आर्ग्यू, यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट ए का नहीं आएगा क्योंकि आर्ग्यू जब मेंट हम करेंगे तो ई इसमें से रिमूव हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर है बी। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आता है इसमें एंट्रेंस एग्जाम्स में ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो आपको क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी, बट लेकिन इतना ईजी भी नहीं है कि आप इसे आसानी से, इट मीन्स you have to just be conscious about your thought and read the question correctly and try to understand it and just find the things deeply and then give the answer। समझ के, सोच समझ के अच्छी तरह से और तब आंसर दीजिएगा। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और आपको समय का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। सो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन पे जो है क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।